Welcome to my video. In this video session here I will talk about class 10 history chapter 4, the industrialization, the age of industrialization. The age of industrialization, it means औद्योगिकरण का युग. औद्योगिकरण का युग हम यहाँ पर here I will discuss about. देखिए फर्स्ट you saw the figure dawn of the century published by E.T. Paul Music को न्यूयॉर्क इंग्लैंड 1900. तो यहाँ पर देखिए बाय ई टी पॉल, यहाँ पर आपका क्या चित्र डॉन ऑफ द सेंचुरी ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क अमेरिका इंग्लैंड 1900. देखिए हियर इज द फिगर, ये फिगर जो है आपको हियर इज द फिगर अबाउट डॉन ऑफ द सेंचुरी ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900 का है. Dawn of the Century published by E.T. Paul Music Company न्यूयॉर्क इंग्लैंड 1900 सेंचुरी का यहाँ पे. So you see the in image there are many more machines are developed. There are many more machines are developed here. And now let's start this reading topic. First, I will uh, in 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. Dawn of the century. E.T. Paul Music Company ने E.T. Paul Music Company से 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर जिसकी कवर पर दी गई तस्वीर में नई सदी का उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था. As you can see from in the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure. The angel of progress, progress, bearing the flag of bearing the flag of the new century, bearing the flag of the new century. यहाँ आपके देख क्या है क्या कि नई सदी को द डॉन ऑफ द सेंचुरी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है. तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है. यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है. उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ. यह पहिया समय का प्रतीक है. उसकी उड़ान भविष्य की ओर है. उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं. रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना हैं. अब आप यहाँ पर हियर यू कैन सी दैट in 1900 a popular music publisher E.T. Paul produced a music book that had picture on the cover page announcing the dawn of the century. As you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure. The angel of progress, bearing the flag of the new century. She is gently perched on a wheel with wings, symbolizing time. She is gently perched on a wheel. She is gently perched on a wheel with wings, symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Her flight is taking her into the future, floating about. Her flight is taking her into the future, floating about behind her are the signs of progress: railway camera, machines, printing press, and factory. The printing press and factory here you can see. Her flight is taking her into the future, floating about behind her, and are the signs of progress: railway, camera, machines, printing press, and factory. Machine here, the glorification of machine and technology is even more marked in a picture which appear on the page of the trade magazine over 100 years ago. It shows two magicians, and the one at the top is Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his beautiful palace with his
with his magic lamp. The one at the bottom, is the modern mechanic who with his modern tools weaves, who with his modern tools weaves a new magic, builds bridge, ships towers and high-rise building. Aladdin is shown as representing the east and the past. The mechanic stands for the west and modernity. हियर देखिए यहाँ पे क्या मशीन और तकनीक का यह महिमा मंड एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा, एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। यह इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में आपको प्राच, जिसको एन बोलते हैं, प्राच या ओलेंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलाउद्दीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। तो हियर यू कैन सी द इमेज। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कि here is a figure, you see the in this is the figure, this is two figure of this time, that time टू मैजिशियंस। देखिए दो जादूगर के यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है। टू मैजिशियन पब्लिशड इन इनलैंड प्रिंटर्स 26 जनवरी 1901। दो जादूगर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 यह तस्वीर है। इसमें देखिए क्या ऑक्सीडेंटर का एक फिगर है, जहाँ पर देखिए अलाउद्दीन है, ये अलादीन है जो कभी जादू चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल तैयार कर दिया। अब उसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है द मॉडर्निटी यहाँ पर शो किया गया। ये आधुनिक आदमी है जो पूरी तरह से मॉडर्निटी है, और आज का ये प्रतीक है वो अतीत का था। तो ऊपर वाला अतीत हो गया और नीचे आपको प्रेजेंट में आ गया, वर्तमान में आ गया, मॉडर्निटी में आ गया। तो यहाँ देखिए एक फिगर यहीं पे कहा गया था। अब इसके बाद आगे जो चैप्टर है, आपको आगे जो टॉपिक इसी का आपको देखिए एक नया वर्ड था ओरियन। देखिए क्या होता है कि व्हाट इज ओरियन, देखिए जिसको हम प्राच्य बोलते हैं। Orient देखिए प्राच, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन। देखिए द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया। द टर्म arises out of a western viewpoint that see this region has प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड माइस्टीरियस होता है। देखिए यहाँ पर क्या ओरिएंट यहाँ पर कहा गया, मतलब ओरिएंट मतलब प्राच्य होता है। देखिए द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया। द टर्म arises out of a western viewpoint that sees this region has pre-modern, traditional and mysterious। और देखिए प्राच्य क्या होता है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को हम प्राच्य बोलते थे। आमतौर पर यह शब्द एशिया के इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। फिर आपको यहाँ पर आगे एक इमेज आपको शो किया गया है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें शो की वो इस प्रकार है। देखिए द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक whom द वन एट द बॉटम, द वन यहाँ पर जो देखिए द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक whom with his modern tools weaves a new magic, builds bridge, ship towers and high rise building. Aladdin is shown as representing the east and the past. The mechanic stand for the west and modernity. These images offer us a triumphant
triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations. देखिए these images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovation. Machines and factories, railway and stem ships, railway and stem ships. The history of industrialization thus become simply a the history of industrialization thus become the history of industrialization becomes simply a story of development, and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. The history of the industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, तो ये आपको कहा गया क्या कि एक मशीन, ये तो चीज़ें हो चुकी थी। अब देखिए एक आधुनिक मैकेनिक है जो आपको आधुनिक अपने एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। ये जो आपको तस्वीर अभी अलादीन का वो मैकेनिक का था, ये तस्वीर आपको आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव एवं आविष्कारों, मशीनों एवं कारखानों, रेलवे और वास्तुपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है, और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट का दीज इमेज जो यहाँ पर कहा गया देखिए these images and association have now become part of popular imagination. Do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? Do you not think that the speed of railway and factories and construction of high-rise building and bridge is a sign of society's development? अब देखिए अब ये छवियाँ देखिए अब ये छवियाँ अर्थात इमेज जो है, अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बने। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को ये प्रगति एवं आधुनिकता के कार्य के रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें, पूरक का विस्तार समाज के विकास का घोतक होता है? अब देखिए हाउ हैव दिस इमेज डेवलप्ड how have these images developed, and how do we relate to these relate to these ideas? Is industrialization always based on rapid technological development? Can we today continue to glorify continuous mechanization of all work? Can we today continue to glorify continuous mechanization of all work? What has industrialization meant to people's lives? What has industrialization meant to people's life? To answer such question, we need to turn to the history of industrialization. ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई है, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राज्य ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था।
In this chapter, in this chapter, in this chapter we will look at this history by focusing first on Britain. The first on Britain, the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial change, where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. इस देखिए यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट on Britain, the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. इस अध्याय में हम इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, गिव टू एग्जांपल वेयर मॉडर्न डेवलपमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेस हैज led to the problem. You may like to think of areas related to environment issue, nuclear weapons और disease. अब यहाँ पे गतिविधि जो देखिए यहाँ पे दो ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्याएं पैदा हुई है। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियार एवं बीमारियों संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको देखिए, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले, देखिए बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले की बात हम यहाँ पर करते हैं। ऑल टू ऑफन बी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं। अब यानी कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले की हम यहाँ पे आपको बात करते हैं। यहाँ देखिए all too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial workers, we mean factory workers. Histories of industrialization very often begin with the setting of the first factories. देखिए, औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़ कर देखते हैं। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़ कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। देखिए, जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या, देयर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडिया, देयर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडियाज इवन बिफोर फैक्ट्रीज began to dot the landscape in England and Europe. There was large scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. अब देखिए, औद्योगिकरण क्या पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड ये पर इस सोच में पर इस सोच में इस विचार में एक समस्या है पर इस सोच या विचार में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन को फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण बहुत सारे इतिहासकार इस औद्योगिकरण की इस चरण को आदि औद्योगिकरण प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको बहुत सारे जो आपको लोग हैं वो आपको इस चीज़ को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम आपको यहाँ पर देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो लाइन कही गई है, अब देखिए आदि प्रौद्योगिकरण, देखिए पर इस विचार में एक समस्या। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण की इस चरण को आदि औद्योगिकरण प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको लाइन है वो है, देखिए आदि मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोटो बोलते हैं। अंग्रेजी में प्रोटो, हिंदी में आपको आदि बोलते हैं। इसका ये मतलब है इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। प्रोटो मतलब क्या, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। indicating the first or early
अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब आदि आदि किसी चीज़ की पहल या प्रारंभिक अवस्था का संकेत, किसी चीज़ की पहल या प्रारंभिक अवस्था का संकेत को हम आदि कहते हैं। आदि कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या पहला जो फिगर आपके यहाँ पर वो आपके यहाँ पर दिया गया है क्या 18वीं सदी में कहता है का फिगर यहाँ पर देखिए 18वीं सदी स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी में देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी। देखिए स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी का आपके यहाँ पर फिगर दिया गया है। यू कैन सी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ yarn। ये देखिए you can see each member of the family involved in the production of yarn. Notice that one wheel is moving only one spindle. Moving that one wheel. Notice that one wheel is moving only one spindle. देखिए आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। एक ही तकली ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। एक ही तकली आपको बन रही है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट आपको यहाँ ये तो हो गया। अब एक चीज़ देखिए क्या देयर इज प्रॉब्लम ये तो भी हो गया था कि इन 17 एंड 18 सेंचुरी इन कंट्री। अब यहाँ पे एक लास्ट बात है जो देखिए क्या देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द 17 एंड 18th सेंचुरी इन द 17 एंड 18th सेंचुरी merchants from the towns in Europe began moving to the countryside in the 17th and 18th centuries. Merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and acquisition of the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing, but merchant could not expand production within towns. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. These were association of producers. These were association of producers that trained crafts people maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into trade. Granted different guilds the monopoly right to produce and trade in a specific product. It was therefore difficult for new merchants to set up a business in town, so they turned it to the countryside. अब आप यहाँ पर देखिए क्या है कि जो कि 17वीं और आपको क्या यहाँ पर देखिए क्या 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय शहरों तो जो यहाँ पर कहा गया क्या कि 17वीं और 18वीं सदी शताब्दी 17वीं और 18वीं शताब्दी यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव की तरफ रुख करने लगे थे। हाँ 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे।
प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। खास शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँव की तरफ आपको जाने लगे। अब यहाँ नेक्स्ट जो यहाँ पर कहा कि वो देखिए कि इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसन बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसन बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट। हैज यू सीन इन द textbook last year? This was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier dependent on common lands for their survival, gathering their firewoods, berries, vegetables, hay, and straw had to now look for alternative source of income. Many had teeny plots of land which could not provide work for all members of the household. So when merchants came around and offered advance to produce goods for the peasants' household, agreed by working for the merchants. Uh, uh, they they could remain in the countryside. They could remain in the countryside. They could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. Just income from proto industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a poorer use of their family labor resources. अब देखिए गाँव में इसका ये तात्पर्य यहाँ कह सकते हैं क्या कि गाँव में गरीब काश्तकार, गाँव में आपको गरीब काश्तकार और दस्तकार, गाँव में आपको गरीब काश्तकार और दस्तकार सुदागरों के काम करने लगे। गाँव में गरीब लोग काश्तकार और दस्तकार सुदागरों के लिए काम करने लगे थे। गाँव में आपको गरीब काश्तकार और दस्तकार सुदागरों के लिए काम करने लगे थे। जैसा कि आपने पिछले साल के पाठ पुस्तक में देखा, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमर्स की बाराबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझे जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेलियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम से आने वाले छोटे किसान, जिसको कॉटेजर बोलते हैं, छोटे कॉटेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए सौदागरों के काम करते हुए वे गांव में ही रहते थे। सौदागरों के काम करते हुए गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है आपको छोटे-छोटे खेतों को भी इट ऑल्सो देखिए इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाले देखिए इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी आपको मिल गया। अब आगे यहाँ पर कहता है विद इन दिस सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या स्टेपलर, देखिए ए पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वुल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर इज कॉल्ड स्टेपलर। देखिए स्टेपलर किसे कहते हैं? ए पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वुल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर इज कॉल्ड स्टेपलर। ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है, उसी को हम स्टेपलर कहते हैं। अब देखिए फूलर किसे कहते हैं? फूलर देखिए ए पर्सन हु फूल्स दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग। आप देखिए पूरा फूलर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुनटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुनटों के सहारे कपड़े को समेटता है।
कार्डिंग क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच फाइबर सच हैज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रियर टू स्पिन। देखिए द प्रोसेस इन विच फाइबर्स, कार्डिंग किसे कहते हैं? देखिए कार्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच फाइबर सच हैज कॉटन और वूल, द प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रियर टू स्पिनिंग आपको होता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ कार्डिंग क्या है? कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसी को हम कार्डिंग बोलते हैं। अब आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या है? देखिए कार्डिंग के बाद आपके यहाँ पे आगे है ये लॉन्च, ये देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट जो आपको इमेज दिया गया है उसको यहाँ पे देखिए, क्या कि लंकाशायर, देखिए ये लंकाशायर कॉटन मिल, पेंटेड बाय सी टर्नर, द इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1925। द आर्टिस्ट सेड देखिए सीन थ्रू द humid atmosphere that makes Lancashire the best cotton spinning locality in the world. A huge cotton mill aglow with electricity in the twilight is a most impressive sight. देखिए लंका से एक कॉटन मिल सी टर्नल द्वारा बनाया गया चित्र दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1925 कलाकार ने कहा अगर उस नम मौसम की नज़र से देखे जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है, सबसे शानदार नज़ारा आपको दिखाई देता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहता है देखिए नेक्स्ट इज टू, अब यहाँ पर आपको एक नया जो देखने को मिलेगा वो ये है, अब देखिए क्या कि विद इन द नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको एक मिनट देखिए कि विदिन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। ए मर्चेंट clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn thread that was spun by taken in subsequent stage of production to weavers, fullers, and then to dyers. The finishing was done in London before the export merchants sold the cloth in the international market. London in fact came to be known as a finishing center. अब यहाँ देखिए क्या इस व्यवस्था से शहरों और गाँव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उसके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था, मतलब गाँव में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुँचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, बनावट होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कहा गया क्या, दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेज। अब यहाँ देखिए क्या है कि जो कहा गया दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेज। इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिलीज फार्म, नॉट इन फैक्ट्रीज। देखिए यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों को उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूर से काम करवाता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में
उत्पादन के प्रत्येक चरण में आपको प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि देखिए एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। इसका यह मतलब था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट जो बातें कही, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, द कमिंग ऑफ द जो फैक्ट्री है वो आपको देखिए यहाँ पर क्या कारखानों को उदय देखिए। देखिए हमें द कमिंग ऑफ द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री बोलिए, मतलब कारखानों को उदय बोलिए, या द राइज ऑफ फैक्ट्री, द राइज ऑफ फैक्ट्री बोलिए, यही आप मतलब कारखानों को उदय। द अर्लीस्ट फैक्ट्री, यहाँ देखिए द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम ऑफ बाय द 1730 decades, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied। देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले, देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, तो इंग्लैंड में सबसे पहले आपको 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले आपको 1730 के दशक में 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। The first symbol of new era was cotton. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed. Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was improving 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes with the process of production. Let us look briefly at some of these. यहाँ पर देखिए क्या है कि कपास कॉटन, देखिए कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास से की जो 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के 2.5 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि बदलाव कौन से थे। अब यहाँ देखिए कि ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th century increase the efficacy of each step of production process, carding, twisting, and spinning and rolling. They enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of a stronger and thread and yarn. Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now the costly new machine could be purchased, set up, and maintained in the mill. Within the mill, all the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production processes, a watch over quality, and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. लेकिन 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया कार्डिंग ऐंठना एवं कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजबूत उत्पादन बढ़ गया और पहले ज़्यादा मजबूत धागों एवं रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर पर ही करते थे। लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन कारखानों में लगाया जा
सकता था। लगाया जा सकता है। कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। अब आपको यहाँ पे एक फिगर जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है देखिए यहाँ पर क्या है कि इन द अर्ली 19th century, factories increasingly became an intimate part of the England's landscape. So visible were the imposing new mills. So magical seems to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the balances and the workshop where production still continued. अब 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदेश का अभिन्न अंग बन गए थे। 19वीं सदी की कारखाने इंग्लैंड के भूदेश का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी ज़्यादा ही दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी यहाँ पे ये है क्या कि द वे इन विच हिस्टोरियन फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, द वे the way in which historians focus on industrialization rather than on a small workshop is a good example of how what we believe today about the past is influenced by what historians choose to notice and what they ignore. यहाँ पे देखिए, जिस तरह इतिहास का छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत जो विश्वास लिए हुए हैं, वे इस बात से तय होते कि इतिहास का सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते थे और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता-पिता, शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि the way in which historians focus on industrialization rather than on a small workshop is a good example of how what we believe today about the past is influenced by what historians choose to notice and what they ignore. Note down one event or aspect of your own life which adults such as your parents or teachers may think is unimportant, but which you believe to be important. here is the फिगर। आप यहाँ एक फिगर देख सकते हैं, जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया था। देयर इज नो फिगर, यहाँ पे ये फिगर आपको यहाँ पर दिया गया। इसी फिगर की मैं आपको चर्चा कर रहा था। यहाँ पे एक फिगर देखिए, जस्ट एक मिनट, ये आपको फिगर हुआ जो औद्योगिक रफ्तार की परिवर्तन की रफ्तार का फिगर दिया गया था। अभी तक फिलहाल हमें कारखाना उदय पढ़े। हियर आई विल लीड और उसका स्टिल कंटिन्यूड आपको इन द अर्ली 19th जो एक्टिविटी पर है। उसके बाद आपके यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर किसका है? तो ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिगर आपको यहाँ पर औद्योगिक मैनचेस्टर, देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया गया वो फिगर आपको यहाँ पर है किसका, कि यह है क्या, और इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय एम जैक्सन, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857। किमनिया यहाँ पर क्या है देखिए, चिमनीज बिलोइंग स्मोक कैम टू कैरेक्टराइज their industrial landscape. Chimneys billowing smoke came to characterize the industrial landscape. देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई। तो धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको खास बातें थी, एक्टिविटी तो आपको हो ही गया। एक्टिविटी लुक एट द फिगर 4 and 5। Can you see any difference in the way the two images show industrialization? Expand your view briefly। ये यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कहता है, एक्टिविटी आपको यहाँ पर कहता है क्या कि गतिज 4 और 5 की बार फिर से आप देखिए और क्या आपको दोनों तस्वीरों में औद्योगिकरण को दर्शाने के लिए ढंग में कोई फर्क दिखाई देता है और देता है। अब यहाँ पे देता है अपना दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त कर, यहाँ पे ये बातें आपको है। अब आप यहाँ देखिए, यहीं तक रखिए। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो आपको यहाँ पर है,
द पेस ऑफ आपको क्या देखिए द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज मतलब ये हुआ कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार या औद्योगिक परिवर्तन की तेजी। औद्योगिक परिवर्तन की तेजी, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार जो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब, इट इज योर डिपेंड ऑन यू।